Hello and welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to start with our first chapter of history, that is the Renaissance in Europe and development of science. So I have also uploaded videos on class 12 political science, so you can also check them in the playlist of this channel. So we are going to start with 1.1 European Crusades and its far-reaching consequences. So before starting to our topic, we will study a bit about the introduction part. So as the medieval period in Europe was nearing its end, it saw advances in various fields of life. Europeans discovered unknown land, and there were movements of religious reformation. The foundation of the modern period were laid in this period, and hence this period is called as the Renaissance, which means rebirth. In this period, the ancient Greek and Roman traditions of the art, architecture, philosophy, etc. were revived. However, Renaissance is not only the revival of the ancient tradition. Renaissance also saw overall development in many fields, and it proved to be the beginning of a new era. So Renaissance means what? Renaissance means rebirth. So why do we call Renaissance as rebirth? So see, our history is divided in ancient, medieval and modern. Hमारा जो history it is divided in ancient, medieval and modern. So in this chapter we are going to discuss about the European history. जो यूरोप का हिस्ट्री है, सो उसमें जो मेडिवल पीरियड है, मेडिवल पीरियड में देयर वाज लॉट ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द मेडिवल पीरियड इन यूरोप. सो द फेज आफ्टर द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड. सो जो ये फेज था मेडिवल पीरियड के एंड होने और मॉडर्न पीरियड के स्टार्ट होने, सो ये जो फेज था बीच में, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इन वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लाइक in literature we can see Shakespeare. Then also in scientific there was a lot of scientific developments, जैसे कि टेलीस्कोप हुआ. देन कॉपरनिकस ने बोला कि अर्थ इज सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट. सो पहले द पीपल यूज टू थिंक वाइस वर्सा, दैट that the sun moves and the earth is stable. So people used to think like this. So and lot of people they started traveling, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स, बहुत सारे नए कॉन्टिनेंट्स वो लोगों ने एक्सप्लोर किए. एंड ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए. आर्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि मोनालिसा वगैरह पेंटिंग आ गए, और फिर लियोनार्डो दा विंची वगैरह, वो हम लोग बहुत सारे नाम सुनते. सो ये सब ये रेनेसांस पीरियड में जो डेवलपमेंट हुई उसी की देन है. और ये पीरियड में बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मेशन भी हुए, जैसे कि लैटिन में बाइबल लिखी जाती थी पहले. सो लोगों को मतलब इतना एक्सेस नहीं था, सभी लोगों को लैटिन आती नहीं. अपनी अपनी यूरोप में भी अपनी अपनी सब लोगों की रीजनल लैंग्वेजेस है. सो इट वाज इम्पोर्टेंट टू convert Bible into different languages. So सब लोगों को उसको एक्सेस रहे, एंड एग्जैक्टली दे विल कम टू नो व्हाट आर दी एग्जैक्टली प्रीचिंग्स, एंड वो लोगों को पोप एंड प्रीस्ट व्हाट दे आर प्रीचिंग. क्योंकि ये पोप और प्रीस्ट लोग जो थे ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन करते थे बाइबल का. एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉमन मैन वॉज एक्सप्लॉयटेड अ लॉट, एंड बहुत सारी रिलीजियस लाइफ ये लोग कंट्रोल करते थे लोगों की. एंड कभी कभी तो ऐसे भी होगा कि चर्च, इफ चर्च इज सेइंग समथिंग देन इट इज द लास्ट थिंग एंड यू हैव टू लिसन. सो नेक्स्ट नाउ वी विल स्टार्ट विद European Crusades and its far-reaching consequences. Jerusalem and Bethlehem are the two cities which are considered holy by the Jews, Christians and Muslims. These cities were under the Islamic rule in the 11th century. Several wars were fought by the Christians in Europe in 11th century to regain hold on these cities. These wars are known as Crusades. So basically Jerusalem and Bethlehem, these two cities are इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सिग्निफाई करती है जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है इन तीनों रिलीजन्स का, जैसे कि ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम. ये तीनों रिलीजन्स के लिए ये दोनों भी सिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी की बात करें, सो
Bethlehem में Jesus Christ was born and he is raised up in Jerusalem. So both the cities are important because they are having a significant religious significance for them. So and इसके ऊपर मतलब ज्यूस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उनके भी रिलीजन्स से वो कनेक्टेड है सिटीज़, इसलिए सबको इस पे रूल चाहिए, तो सबको उस सिटीज़ पे अपनी होल्ड चाहिए थी. सो बेसिकली ये सिटीज़ है, इन पे इस्लामिक रूल आया था इन 11th सेंचुरी, एंड ये सिटीज़ लाइक द क्रिश्चियंस वांटेड टू रीगेन द पावर बिकॉज दीज आर हैविंग रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम. सो इन लोगों को एंड इवन मुस्लिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो प्रॉफिट है उन्होंने यहाँ से जन्नत ली थी, ऐसे कुछ इसलिए उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंस है इस रिलीजियस साइट का. सो एंड बिकॉज ऑफ ऑल मतलब सब लोगों को ही वो सिटीज़ पे अपना रूल चाहिए था. सो बेसिकली जो इस्लामिक रूल था 11th सेंचुरी में वो मतलब उसके अगेंस्ट जो थे, जो वॉर फॉट हुए थे, मतलब क्रिश्चियंस को वो रीगेन करना था, होल्ड करना था वापस. दे वांटेड टू रीगेन देयर होल्ड ऑन दी सिटीज़, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फॉट वॉर, एंड दीज वॉर्स आर नोन एज क्रूसेड्स. तो क्रूसेड्स जनरली ये सिटीज़ वापस पाने के लिए जो वॉर ये लोगों ने फॉट किए थे, इनको हम लोग बोलते हैं क्रूसेड्स. इनको हम लोग क्रूसेड्स के नाम से जाने जाते हैं. और देखो पहले इतना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी एंड डेवलपमेंट नहीं थी एंड बहुत सारे जो वेपन्स के वगैरह. सो ये फेज़ जो थी ना क्रूसेड्स फॉट कर, ये बहुत बड़ी फेज़ है, बहुत लंबा टाइम ये क्रूसेड्स चले. सो अभी बिकॉज ऑफ रिलीजन, पोप द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च had announced that those who fought in a crusade would be forgiven for their sins and would immediately go to the heaven, and this led to a spontaneous participation by the common people in the crusades. Besides, the social political circumstances in Europe were also among the causes for the beginning of these wars. So जैसे कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट कैथलिक मीन द चर्च वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी समटाइम्स. मतलब जो चर्च लाइक चर्च कभी कभी क्या करता, जो उन लोगों के मतलब खिलाफ जाता था, दे यूज टू हैंग देम अप, एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइक चर्च यूज टू इम्पोज एंड कंट्रोल ऑल, मतलब लोगों की दे यूज टू कंट्रोल द रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल. इवन दे यूज टू समटाइम्स कंट्रोल द रिलीजियस लाइफ ऑफ द किंग ऑल्सो. सो जो रोमन कैथलिक चर्च थे, उनके जो पोप्स थे, वो लोग मतलब जो भी चर्च थे, उन्होंने मतलब अनाउंस किया कि दोज हु आर गोइंग टू फॉट द वॉर, तो उन जो भी फॉट करेगा वॉर, उनको उनके जो जितने भी सिंस है, जितने भी पाप है, वो सब धुल के दे विल गो टू हेवन, उन लोगों को स्वर्ग मिलेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस लेस religion was having a tremendous importance in the medieval period, so there was a spontaneous participation by the common people in the crusades. So beside this, सिर्फ यही रीज़न नहीं कि क्रूसेड्स में क्रूसेड्स हुआ एंड वॉर हुआ, यही रीज़न नहीं है क्रूसेड्स के लिए, बट सोशल पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस है तभी के यूरोप के, वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो हम लोग इतना भी डिटेल नहीं पढ़ रहे ये चैप्टर में, बट एक हम लोग ग्लांस कर रहे हैं ये चैप्टर में. ओके, सो रोमन एम्परर्स वर ट्राइंग टू ब्रिंग द रीजन्स ऑफ सीरिया, एशिया माइनर अंडर देयर रूल. Rich merchants in Venice, Genoa, the two trading centers in Italy, wanted to establish their trade in Central Asian marketplaces. So, thus the Crusades were supported by the rulers and rich traders. So, इटली एक तभी इम्पोर्टेंट था यूरोप में. आप ज़रा मतलब जो मैप है वर्ल्ड मैप, उसमें देख लो आप कहाँ पे है सीरिया और एशिया माइनर, तो वो यूरोप के थोड़ा पास में ही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो देखो यूरोप में कोई एक ही राजा नहीं था, तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे यूरोप में. एंड बिकॉज ऑफ दिस वो लोगों को मतलब दे यूज टू इन्वेड अदर किंगडम्स, या फिर उन लोगों को ज़्यादा एरिया पे रूल करना था, क्योंकि तभी एम्पायर जो किंग था वो सुपीरियर था. सो इनके खुद के ही मतलब दे वर हैविंग
पर्सनल इंटरेस्ट, देयर ओन इंटरेस्ट इन सच थिंग्स। मतलब जब वॉर होगा और वो एक टेरिटरी हमारे अंडर आ सकती है बिकॉज वो किंग के अंडर, एंड देन ऑल्सो जो वॉर होता है तो उसमें बहुत सारा खाना लगता है, जो वॉरियर्स है जो वॉर फॉट करने उन लोगों को प्रोवाइड करना होता है। एंड वॉर लाइक सिचुएशन में मोस्टली जो चीज़ें रहती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज कभी कभी आपको वो एक क्रॉप भी उगाना इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो ये चीज़ें जो है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, दीज बेसिक नीड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये जो सप्लाई है वो जो मर्चेंट्स है, जो ट्रेडर्स है वो करते हैं। सो इनका भी एक खुद का ही इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। So, the first crusade started in 1096 CE. While giving a call for the second crusade, Pope Eugenius III sought help from the French King Louis VII and the German King Conrad. Ultimately, the crusades were defeated by the Turks, and in 1187 CE, Saladin, the Sultan of Egypt, defeated the Crusaders by conquering Jerusalem. However, the Crusaders did not stop after that. In the course of time, totally 9 crusades were launched, and despite the crusade, Jerusalem and the region around it remained under the control of the Islamic rule. So, बहुत सारे वॉर्स फॉट किए थे, एंड फाइनली जो टर्क्स है इन लोगों ने डिफीट किया द क्रूसेडर्स को, एंड जो सलादीन है सुल्तान ऑफ इजिप्ट डिफीटेड द क्रूसेडर्स बाय कॉन्करिंग जेरूसलम। ओके, जो जेरूसलम पे इसने कॉन्क्वर किया, एंड अगेन इनका जो रूल है वो कंटिन्यू रहा। सो कॉजेज ऑफ द फेलियर, सो यहाँ पे एक जो क्रूसेड्स थे वो बहुत लंबे फेज पे चले और इनकी अपनी अपनी स्टोरी है। मतलब जो ये इट इज़ मतलब इट इज़ अ बिग स्टोरी। सो हम लोगों को इतना भी डिटेल में नहीं जाना है, हम लोगों को इधर जो भी इम्पोर्टेंट नाम है एंड डेट्स है वो जस्ट नोट करनी है, वो याद रखनी है। ओके, सो क्योंकि ये जब पूरा एक्सप्लेनेशन तो बहुत बड़ा हो जाता है। So, cause of the failure of the Crusaders. The failure of the Christian Crusaders can be attributed to the attitude of the Pope and the European rulers who initiated the crusades mainly for their own vested interests. Besides the other factors like common people losing faith, rift between the Pope and the European kings, dispute between the Pope and the German Emperor, non-cooperation by the Emperor of Byzantium also caused the failure of the crusades. So जो क्रिश्चियंस क्रूसेडर्स ये फेल हुए, इसके बहुत सारे रीजंस है। बिकॉज जो जैसे कि मैंने बोला कि पोप जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी, मतलब चर्च जो है वो बहुत रिलीजियस लाइफ कंट्रोल करता था लोगों की। सो कभी कभी ये लोग क्या करते थे, जो लोग हैं अगर वो ट्राई करेगी चर्च के कुछ खिलाफ बोलने का, सो दे यूज टू हैंग देम अप। देन जो लोग थे वो बहुत सुपरस्टिशियस हो गए थे क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअली बाइबल में क्या लिखा है। एंड ये जो लोगों गलत सुनते थे, मतलब गलत इंटरप्रिटेशन हुआ जाता था, गलत प्रीचिंग्स मिल रही थी इन लोगों को। सो ये भी और इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, इसके वजह से जो मार्टिन लूथर है, हम लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने। सो वो मार्टिन लूथर, ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया जो चर्च के जो रिलीजियस बिलीफ्स है इनके खिलाफ। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, दे स्टार्टेड लूजिंग देयर फेथ फ्रॉम चर्च। एंड ये लोगों के जो किंग्स थे, इन लोगों में भी आपस में डिस्प्यूट हो रहे थे बिकॉज, एंड ऑल्सो द पोप, जैसे कि मैंने बोला, पोप यूज्ड टू कंट्रोल द रिलीजियस लाइफ ऑफ द किंग। सो इन लोगों में भी डिस्प्यूट हो रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइक सब लोगों में ऑलमोस्ट डिस्प्यूट हो रहे थे। सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से क्रूसेड्स फेल हुए। में जो रिफ्ट है मतलब बढ़ती गई। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स की। सो सम हिस्टोरियंस फील दैट द क्रूसेड्स लेड टू द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब यूरोप में एक सिस्टम है, जैसे कि हम लोग में वैदिक पीरियड में भी सिस्टम रहती थी
वैदिक पीरियड में जैसे हम लोगों में कास्ट सिस्टम रहती थी, वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम में हम लोग वर्ना सिस्टम रहती थी, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, देन आपके वैश्य एंड देन शूद्र, वैसे। पर इसको हम लोग यूरोप के साथ नहीं कंपेयर करेंगे, यहाँ की सिस्टम अलग थी जिसको हम वैदिक सिस्टम, बट इट वाज समवट सिमिलर। सो एंड वहाँ पे यूरोप में कैसी सिस्टम थी कि किंग इज द सुपीरियर, जो किंग बोलेगा, एंड उसके अंडर पूरा एम्पायर रहता था। उसके नीचे एक दूसरे, मतलब उसके नीचे जो रहते थे वो फ्यूडल लॉर्ड रहते थे, उनके नीचे जो रहते थे वो नाइट्स रहते थे, मतलब नाइट्स यूज टू प्रोटेक्ट दी, एंड उसके नाइट्स के नीचे रहते थे जो पीजेंट्स थे उन लोगों, फ्यूडल लॉर्ड क्या करते थे, उनको काम करवाते थे अपने मतलब जो लैंड्स थी जो किंग ने ग्रांट किए हैं उस लैंड पे उन लोगों का काम करते थे। एंड जो वॉरियर्स थे, जो नाइट्स थे, उनका काम था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बोथ टू दी, वो फार्म को भी प्रोटेक्ट करते थे एंड ऑल्सो टू द किंग को भी वो लोग प्रोटेक्शन देते थे। सो ऐसे किसी की, मतलब ऐसे आर्मी नहीं थी खुद की, सो दे यूज टू हायर पीपल फॉर दैट। ओके, so consequences of the crusade. Some historians feel that the crusades led to the end of feudalism in the Europe. The faith in the Pope began to decline. The contact with the regions in the Central Asia led to the increased trade, and new avenues were opened for the cities in Italy and Germany. It saw the rise of new classes of traders. सो यहाँ पे जैसे लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, वो लोगों ने नए रीजन्स एक्सप्लोर किए, और जो लोग रीजन्स एक्सप्लोर करते थे दे यूज्ड टू राइट बुक, और वहाँ पे वो आर्टिकल्स, मैगजीन्स वगैरह। सो लोगों को जो वो जब पढ़ने लगे एंड दे रियलाइज कि हम लोग रह रहे हैं, इट इज़ जस्ट मतलब छोटे एरिया, मतलब ये बहुत हम लोग छोटा एरिया देख रहे हैं, बट इन दी वर्ल्ड देयर इज मोर लॉन्गर, लार्जर, greater perspective. We need to explore a lot of things. We are having a lot of new things. So ये जैसे कांटेक्ट में आए सेंट्रल एशिया के, सो दे रियलाइज सच थिंग। और मेजरली इटली और जर्मन है, ये जो सिटीज़ हैं, यहाँ से ज़्यादा लोग जो थे वो लोग ट्रैवल करने गए थे, मतलब दे यूज टू सर्च फॉर द कॉन्टिनेंट्स, अदर कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा। सो ये इम्पोर्टेंट सिटी है। एंड यहाँ पे ट्रेडर्स का क्लास भी एक हम लोग बोल सकते हैं कि न्यू क्लास ऑफ ट्रेडर्स रोज। सो द यूरोपियन वॉरफेयर वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। द यूरोपियन नेशंस acquired expertise in building forts, managing the forts as a military outpost, building bridges for moving the army from one place to another, destruction of the enemy's routes, etc. European kings levied new taxes which were directly added to the royal treasury. Okay, सो जो यूरोपियन, वो लोगों ने जैसे कि मैंने बोला कि यूरोप में बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे तभी। सो ये लोग क्या करते थे, दूसरे किंगडम्स को इन्वेड करते थे एंड अपना एम्पायर इन लोगों को बढ़ाना होता था। एंड इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इम्पोर्टेंट है चीज़ें फोर्ट बिल्ड करो, सो यू कैन मतलब यू कैन सो यू कैन रेजिस्ट फ्रॉम योर एनिमी। एंड ये लोगों ने क्या किया, जहाँ से एनिमी आता था उधर से, मतलब वो रीजन को ही पूरा डिस्ट्रॉय किया, मतलब वहाँ से रूट जो होते हैं आने के वो ही डिस्ट्रॉय किए, सो एनिमी वहाँ से घुस ना सके। सो ऐसे ये लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, और टैक्सेस जो है वो नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए ये लोगों ने, जो डायरेक्टली ट्रेजरी है, रॉयल ट्रेजरी, मतलब जो किंगडम है उसकी जो रॉयल ट्रेजरी रहती है वो इसीलिए बढ़ेगी। So Europeans were introduced to the newer types of plants, fruit, perfumes, different styles of clothing, sugar, silk, and cotton textiles, spices, medicinal herb, and so on. So during the prolonged time of crusades, Europeans came into contact with Arabs and got introduced to several new subjects. European adopted many Arabic words used in alchemy, music, and commerce. So ये यूरोपियंस थे, ये लोग जैसे ही ट्रैवल करते थे, सो दे सॉ न्यू फ्रूट्स, फ्लावर्स, एंड जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे यूरोप में। सो ये एक, अगर आपके पास कोई चीज़ नई आप लोगों को दिखती है, सो आपको वहाँ पे एक क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। सो जो परफ्यूम्स वगैरह है, दे यूज टू टेक देम टू देयर किंगडम्स, दे एंड जो भी दे स्टार्टेड मार्केटिंग एक्सेट्रा, एंड
then finally marketing, then they started manufacturing, and वो बाद में they started selling. and because of this हम लोग देख सकते हैं कि यूरोप की जो कॉलोनियल रूल है वो बहुत सारे कंट्रीज़ पे था, जैसे कि इंडिया हुआ, जो भी एशियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन इवन अमेरिकन कंट्रीज़ है। सो ऐसे धीरे धीरे ये लोगों ने रूल करना भी शुरू किया। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रेड। इवन आप देख सकते हो जो वो लोग क्या करते थे, वो लिखते थे, उन लोगों में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आते थे, जैसे कि अरेबिक वर्ड्स है, एंड इवन हम लोग इंडिया के भी वर्ड्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो दोनों में ही जो सिमिलैरिटी दिखाता है उसको। सो ये नेक्स्ट टॉपिक है रेनेसांस पीरियड इन यूरोप। सो this we will discuss in another video, and thanks for watching this video. Please do share this with your friends as well, and also subscribe my YouTube channel for more videos, and don't forget to hit the bell icon as well.